ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੜ ਦੰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਦੰਗਲ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ 올림픽ਨ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 올림픽 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ। जिनसी शोषण मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਮਹਿਲਾ ਰੈਸਲਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੈਸਲਰ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਨੇ, 올림픽ਨ ਰਹੇ ਨੇ, 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁੜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। WFI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ FIR ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਰੋਸ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ, उस पर मामला दर्ज किए जाने की मांग, गिरफ्तारी की मांग। हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें न्याय चाहिए, इसलिए हम दोबारा बैठे हैं। हमने एक बार ओवरसाइड कमेटी बनाई थी, एक आईओ की कमेटी बनाई, हमने एक बार भरोसा करके देख लिया। जो जब उसके लोग ही उसमें संतुष्ट नहीं है तो हम कैसे खिलाड़ी कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? उन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ी की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी से भी आप लोगों के से जानकारी ली गई या नहीं ली गई? क्या आपको लगता है कि आप लोग फिलहाल अभी धरने पे बैठे हैं, अधिकारी साई से कोई अधिकारी आपसे मिलने आएगा, सरकार की तरफ से कोई आपसे मुलाकात करने आएगा? आपको लगता है क्या कांटेक्ट किया गया कोई? अभी तक तो कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। हमारे खिलाड़ी अभी आने लग रहे हैं। हम 2:30 बजे एक बार 2-2:30 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अगर प्रधानमंत्री तक आप इलेक्ट्रिक मीडिया से बात नहीं पहुंच पाई होगी तो हम चिट्ठी भी लिखेंगे कि खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं। और अगर रही बात, अगर स्याही नहीं मिलेगी तो खून से चिट्ठी लिख के भेजेंगे कि भाई खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि जब पूरा देश जब मेडल जीत के आते हैं तो पूरा देश हमें सम्मानित करता है, इतना प्यार और आशीर्वाद देता है। अब बात जब लड़कियों के सम्मान की, इज्जत की है तो बोल रहे कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करने का इतना शौक नहीं है हमें। हम अभी खिलाड़ी हैं, हम खेल ही कर रहे हैं, अभी एक्टिव प्लेयर है सभी, किसी ने गेम नहीं छोड़ रखा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये राजनीति जो कर रहे हैं वो छोटे मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। मगर सच्चाई की लड़ाई के लिए क्या डगमगाना था? चाहे कितने भी दिन लग जाए हम यही हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता हम यही हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई आप लोगों से कांटेक्ट किया गया क्या? कोई सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया या फोन पे कोई बातचीत हुई? नहीं सर, सरकार की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई भी अभी तक मिलने नहीं आया। क्या मांग है फिलहाल? अभी सरकार को क्या कहना चाहेंगी? आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? अभी फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं वो देख रहे हैं कि तमाम लोग जो फिलहाल हैं वो स्टेज सजाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं एक जन समर्थन भी मिल रहा है। बिल्कुल सर, जन समर्थन की बिल्कुल आवश्यकता है हमें। और पिछली बार जो है हमारे साथ राजनीति हुई है, कुछ गलत लोगों की बातों में आके हमारे साथ राजनीति हुई। बस उनका नाम तो मैं क्या लूँ, लेकिन वही बात है, अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना पॉलिटिकल वो सीधा करने के लिए उन्होंने हमारे साथ राजनीति की।
किसी और पॉलिटिकल आदमियों को आने नहीं दिया, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ के कोई अपना थोड़ी प्रचार प्रसार करती, वो हमें हमारी हालात देख के हमारे समर्थन के लिए आई थी। पिछली बार हमने उनकी बातों में आके, उन्होंने हमें मैनिपुलेट किया, उनकी बातों में आके हमने अपना धरना ख़त्म किया, जिसकी वजह से पूरे भारत की जो जनता है उसका भरोसा उठा, क्योंकि सबको पता है जनता के आगे कुछ नहीं छुप सकता, सब जानते हैं कि क्यों हम उठे थे और किन की बातों में आके उठे थे। रवि मिश्रा मेरे सहयोगी जंतर मंतर ते मौजूद ने, रवि दा रुख करने और रवि तैयारी कर रहे हैं, रवि दा रुख करांगे, रवि दे कोल चलांगे और एक कुछ तथ्य ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। WFI ਤੇ ਮੁੜ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਮਿश्रा ਮੇਰੇ ਸਹਿयोगी ਮੇਰੇ ਨਾਲ जुड़ रहे ਨੇ। रवि का रुख करांगे। रवि, जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं, बहुत कुछ पिछले तकरीबन 2 से ढाई महीने में इन पहलवानों ने सहा है, झेला है और आज फिर एक बार फिर पिछले कल से अगर हम बात करें, बीते कल से फिर एक बार धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हैं और पहलवान ये कह रहे हैं कि क्या हमारी आवाज सरकार नहीं सुन पा रही? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको इस तस्वीर के बारे में ज़रूर बयान करूंगा कि ये वो पहलवान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई, भारत का मान सम्मान बढ़ाया, मगर आज इनको धरने पर दोबारा बैठना पड़ रहा है। क्योंकि बता दूं आपको कि जनवरी महीने में इन तमाम पहलवानों ने इस तरीके से अपनी बात रखी और उस पर अमल अब तक नहीं हो पाया है। जो शिकायतें इन्होंने अपनी तरफ से रखी थी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ, जो यौन उत्पीड़न का मामले थे, जो भी शिकायतें दर्ज की थी, उनको लेकर अब तक अमल नहीं हुआ है। कमेटी बनाई गई, कमेटी में मैरी कॉम को की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, मगर अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि तमाम जो पहलवान हैं उनको दोबारा एक बार जंतर मंतर पर बैठने की आवश्यकता पड़ती है। और आपको बता दूं कि कल से ये लोग निरंतर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम पहलवानों को आपको बता दूं कि रात यहीं पे गुजारना पड़ा और अभी भी इनका जो प्रोटेस्ट है वो बदस्तूर जारी है। आपको बता दूं कि पहलवानों ने 2 बजे का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित किया है, उसमें वो तमाम अपनी बात रखेंगे। आखिर अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया है, जो ये मांग कर रहे हैं उन मांगों को पूरा अब तक क्यों नहीं किया गया है, अमल क्यों नहीं किया गया है। केंद्र मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से इनकी बैठक हुई थी जनवरी महीने में, जब इन्होंने अपनी आवाज़ रखी थी और इन्हें आश्वासन मिला था अस्थायी रूप से। आपको बता दूं कि ब्रिजभूषण शरण को हटा दिया गया है और जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है, मगर अब तक कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ रहा इनका पक्ष नहीं लिया गया और अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ। यही वजह है कि एक बार दोबारा ये पहलवान जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धूप में, जो कड़ी धूप है यहाँ पर और वहाँ पर, उससे बचने के लिए इंतज़ाम करते हुए पहलवान आप देख सकते हैं कि नज़र आ रहे हैं। और तमाम इनको समर्थन मिल रहा है, दूर दराज से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? फिलहाल तो धूप से बचने का अभी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 बजे, मामला बढ़ता जा रहा है, पूरा नहीं हुआ तो क्या किया जाए? पहलवानों के साथ खड़े हैं यहाँ पे, जितने ओलंपिक मेडलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, धूप में अपने ओलंपिक की तैयारी करेंगे, यहाँ पे सब गेम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। सरकार को देखना चाहिए। जब आप लोग मंत्री से मिले पिछली बार, सब कुछ बातचीत हो गई थी, इतना डिले क्यों हो गया प्रोसेस में? बात हो रही है, कार्रवाई कुछ कर नहीं रहे। भारत भूषण उसको जो फेडरेशन का अध्यक्ष बाहुबली बना हुआ उसको हटाओ, उस पर इतने इंजाम लगे हुए, उसको हटा नहीं रहे। सरकार क्यों बचा रही है उसको? बिल्कुल, सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, यही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं पहलवान। मगर आपको तस्वीरें दिखा दूं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और अभी 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पहलवान अपनी बात रखेंगे कि आगे किस तरीके से वो रणनीति बना रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से उनको आगे लेके चलना है। सरकार इस पर अपना क्या पक्ष रख रही है, क्या सरकार इनकी बात को मानेगी, क्या प्रशासन ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज करेगा? क्योंकि साफ तौर पे तफ्तीश शुरू हो गई है, मगर FIR जिसकी मांग कर रहे हैं मुख्य रूप से तमाम पहलवान, ये मांग पूरी होती है कि नहीं? क्योंकि मुख्य रूप से यही मांग है कि जो जांच है वो चलती जाए, मगर FIR तो दर्ज हो, मामला तो आगे बढ़े। आखिर क्या वजह है, क्यों ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, ये सवाल तो है ही, लेकिन रवि इसके साथ सवाल ये भी है कि
जो पहलवान यहां धरना दे रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग इनका विरोध करते हैं, वो ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि लड़ाई कोई फेडरेशन की लड़ाई नहीं है, ये एक राज्य की, एक राज्य विशेष के पहलवानों की बाकी सब राज्यों के पहलवानों के खिलाफ एक मुखालफत है, या कह लिया जाए कि अपने वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है। इस तरीके से भी इसको परिभाषित किया जाता है। तो यहां जो पहलवान है वो क्या कहते हैं इसको लेकर, रवि? तो ये सवाल हम जरूर पूछेंगे कि राज्य से इसको जुड़ा जाता है कि हरियाणा के ही ये तमाम मुद्दे हैं जो ये शिकायतें आ रही हैं, मगर ये वो पहलवान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को पहचान दिलाई है, परचम लहराया है देश का। मेरा नाम राजीव माथुर, प्रधान खिलाड़ी दिल्ली से। मेडल तो हरियाणा के लेके आते हैं पहलवान, ओलंपिक में मेडल तो चाहिए हरियाणा को। मोदी जी भी तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री हमारे, लेकिन अब इनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। ओलंपिक मेडलिस्ट सड़क पे बैठे हैं, ये बहुत शर्म की बात है अपने देश के लिए। एक बाहुबली को बचाया जा रहा है, उसको उससे प्रेसिडेंट पद से हटाया जाए, ज़बरदस्ती वो बाहुबली के तौर पे है वो, उसको उसका देखो, उसका रिकॉर्ड उठा के कितने साल हो गए वो दादागिरी कर रहा है। अलग राज्य के जो खिलाड़ी हैं वो क्या इस मुद्दे पर, इस मामले पे आप लोग के साथ हैं? इस मुद्दे पे पूरे देश के रेसलर पहलवान पूरे देश के साथ हैं, पूरे देश के अखाड़े के सब बच्चों के। आज 6 FIR करवाने की अभी एप्लीकेशन दी गई है, हमारी FIR नहीं हो पा रही। बिल्कुल FIR दर्ज नहीं हो पा रही है और यही वजह है, मुख्य वजह है। और ये मामला सिर्फ हरियाणा का नहीं, तमाम खिलाड़ियों का है, क्योंकि इनका कहना है कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश को ओलंपिक मेडल दिलाए हैं, स्वर्ण पदक दिलाए हैं, और आज ये खिलाड़ी मजबूर हैं इस बेबस सी धूप में छांव खोजने पर, अपने मुद्दों को उजागर करने पर। चूंकि एक बार ये यहाँ बैठ चुके हैं मगर मामला नहीं सुलझा, शायद यही वजह है कि दोबारा इन खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर आना पड़ता है और अपनी आवाज़ पूरे जोरों शोरों से बुलंद करनी पड़ती है। जी बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। सो रवि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन, और जंतर मंतर थे पहलवान धरना देने दे ਲਈ मजबूर ने, पर की पहलवाना दी आवाज सरकार सुनेगी, सवाल हजे बरकरार है।